بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے۔ گلابی پوئٹری کے معزز دوستو، میں ہوں رانا خالد اور گلابی پوئٹری کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج آپ کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سیریز کی یہ 31ویں ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کس پیمانے پر ہو رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان لڑائی نہیں چاہتا اور مکہ والوں کی اکثریت اس کے ساتھ ہے۔ صرف اکرمہ اور صفوان لڑیں گے، لیکن ان کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی ہیں۔ ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان نے نہیں، اکرمہ اور صفوان نے بھیجا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سالاروں وغیرہ سے کہا کہ مکہ میں یہ فرض کر کے داخل ہوا جائے گا کہ قریش شہر کے دفاع میں لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس زمانے میں مکہ کی طرف 4 راستے جاتے تھے جو مکہ کے ارد گرد کھڑی پہاڑیوں سے گزرتے تھے۔ فوج کے ہر حصے کو ایک ایک راستہ دے دیا گیا۔ انہیں اپنے اپنے راستے سے مکہ شہر کی طرف پیش قدمی کرنی تھی۔ فوج کے ان حصوں میں ایک کی نفری سب سے زیادہ رکھی گئی۔ اس کی کمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دستے کے ساتھ رہنا تھا۔ ایک حصے کی کمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ ایک کے کماندار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور چوتھے حصے کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس اسکیم میں غیر معمولی دانشکار فرما تھی۔ 4 سمتوں سے پیش قدمی کا مقصد یہ تھا کہ مکہ کے دفاعی دستوں کو 4 حصوں میں بکھیر دیا جائے۔ اگر وہ مسلمانوں کی پیش قدمی کو کسی ایک یا 2 راستوں پر روک بھی لیں تو دوسرے دستے آگے بڑھ کر شہر میں داخل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ فوج کی اس تقسیم کا مقصد یہ بھی تھا کہ قریش اگر دفاع میں نہ لڑیں تو بھی وہ کسی راستے سے بھاگ بھی نہ سکیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسکیم کے علاوہ جو احکام دیے وہ یہ تھے: قریش دفاع میں نہ لڑیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، امن کا جواب پرامن طریقے سے دیا جائے، اگر کہیں جھڑپ ہو جائے تو زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کی جائے، لڑنے والوں میں جو پکڑا جائے اس پر تشدد نہ کیا جائے، نہ اسے قتل کیا جائے اور اسے جنگی قیدی بھی نہ سمجھا جائے، اور ان میں سے کوئی بھاگ نکلے تو اسے بھاگ جانے دیا جائے۔ اسلامی لشکر کے 4 حصوں کو پیش قدمی کا حکم دے دیا گیا۔ 20 رمضان المبارک 8 ہجری 11 جنوری 630 عیسوی کا دن تھا۔ اسلامی لشکر کے 3 حصے اپنے راستوں سے گزر کر مکہ میں داخل ہو گئے۔ کسی طرف سے ان پر ایک تیر بھی نہ آیا۔ شہر کا کوئی دفاع نہ تھا۔ قریش کی کوئی تلوار نیام سے باہر نہ نکلی۔ لوگ گھروں میں بند رہے۔ کسی مکان کی چھت پر کوئی عورت یا بچہ کھڑے نظر آتے تھے۔ مسلمان چوکنے تھے۔ شہر کا سکوت مشکوک اور ڈراونا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس سکوت سے کوئی طوفان اٹھنے والا ہو۔ شہر سے کوئی طوفان نہ اٹھا۔ طوفان اٹھانے والے 2 آدمی تھے، ایک اکرمہ اور دوسرا صفوان۔ دونوں شہر میں نہیں تھے۔ کئی اور آدمی شہر میں نہیں تھے، وہ قریب ہی کہیں چھپے ہوئے تھے۔ وہ رات کو باہر نکل گئے تھے۔ ان کے ساتھ تیر انداز بھی تھے۔ یہ ایک جیش تھا جو اس پہاڑی راستے کے قریب جا پہنچا تھا جو خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے کی پیش قدمی کا راستہ تھا۔ اکرمہ اور صفوان کو معلوم نہیں تھا کہ اس اسلامی دستے کے قائد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اکرمہ اور صفوان کا ایک آدمی کہیں بلندی پر تھا۔ اس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو پہچان لیا اور اوپر سے دوڑتا نیچے گیا۔ اے صفوان! اس آدمی نے صفوان سے کہا، کیا تو ہمیں اجازت دے گا کہ تیری بیوی کے بھائی کو ہم قتل کر دیں؟ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں نے خالد کو دیکھا ہے۔ اپنے قبیلے کی عزت اور غیرت سے بڑھ کر مجھے کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ صفوان نے کہا، اگر خالد میری بہن کا خاوند ہوتا تو آج میں اپنی بہن کو بیوہ کر دیتا۔ مت دیکھو کون کس کا بھائی ہے، کس کا باپ ہے اور کس کا خاوند ہے۔ اکرمہ نے کہا، خالد میرا بھی کچھ لگتا ہے لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا دستہ اور آگے آیا تو اس پر تیروں کی پہلی بوچھار آئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا۔ اے اہل قریش! خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بلند آواز سے کہا، ہمیں راستہ دے دو گے تو محفوظ رہو گے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پر ہاتھ نہ اٹھانا جو تم پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیا تمہیں اپنی جان عزیز نہیں؟ میں تمہیں صرف ایک موقع دوں گا،
तीरों की एक और बौछार आई। हम तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के पाबंद नहीं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अकरमा ने ललकार कर कहा, हिम्मत कर और आगे आ, हम हैं तुम्हारे पुराने दोस्त सफवान और अकरमा, तू मक्का में जिंदा दाखिल नहीं हो सकेगा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तीरों की दूसरी बौछार से मालूम कर लिया था कि दुश्मन कहाँ है। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दस्ते को रोककर पीछे हटा लिया और अपने कुछ आदमियों को पहाड़ियों के ऊपर से आगे बढ़ने और तीर अंदाजों पर हमला करने के लिए भेज दिया। अकरमा और सफवान खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के इन आदमियों को ना देख सके। थोड़ी सी देर में ये आदमी दुश्मन के सर पर जा पहुँचे। वादी से खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हल्ला बोल दिया जो इस कदर तेज और शदीद था कि कुरैश के पांव उखड़ गए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ऊपर से भी हमला कराया था और नीचे से भी। कहाँ हो अकरमा? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ललकार रहे थे। कहाँ हो सफवान? तो दोनों कहीं भी नहीं थे। वो खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हल्ले की ताब ना ला सके और खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो को नजर आए बगैर कहीं भाग गए। उनका जेश भी लापता हो गया। पीछे कुरैश की 12 लाशें रह गई थी। मुख्तसर सी इस झड़प में 2 मुसलमान जबिश बिन अशर रजी अल्लाह ताला अन्हो और कौस बिन जाबर फहरी रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। इस्लामी फौज के 3 हिस्से मक्का में दाखिल हो चुके थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का दस्ता अभी नहीं पहुंचा था। सब हैरान थे कि अहले मक्का ने मुज़ाहमत नहीं की। फिर खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के न आने की वजह क्या हो सकती है? एक कासिद को दौड़ाया गया। वो खबर लाया कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो 2 मुसलमानों की लाशें लेकर आ रहा है और उसके दस्ते ने कुरैश के 12 आदमी मार डाले हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बरहम हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छी तरह जानते थे कि खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जंगो जदल का दिल दादा है। उसने बगैर स्टाल के लड़ाई मोल ले ली होगी। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के मक्का में आने की इतला मिली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाकर पूछा कि उस हुक्म के बावजूद के लड़ाई से गुरेज किया जाए, उन्होंने कुरैश के 12 आदमियों को क्यों मार डाला? खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि अकरमा और सफवान के साथ कुरैश के मुतअद्दिद आदमी थे जिन्होंने उन पर तीर बरसाए। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ये भी बताया कि उन्होंने अकरमा और सफवान को एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने तीरों की एक और बौछार फेंक दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान से पूछा कि अकरमा और सफवान कहाँ हैं? अबू सुफियान ने बताया कि वो मक्का के दिफा में लड़ने के लिए चले गए थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया कि लड़ाई खालिद ने शुरू नहीं की थी। मक्का पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा उसामा बिन ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो, बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो और उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत करके मदीने को गए 7 साल गुजर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के दरो दीवार को देखा, वहाँ के लोगों को देखा, दरवाजों और छतों पर खड़ी औरतों को देखा। बहुत से चेहरे शनासा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते चले गए और काबा में दाखिल हो गए। 7 मरतबा बैतुल्लाह का तवाफ किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब मक्का में किसी को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फप्ती कसे। अहले कुरैश चेहरों पर खौफ व हैरास के तासुरात लिए अपने अंजाम के मुंतजर खड़े थे। अरबों के यहाँ अपनी बेइज्जती और कत्ल के इंतकाम का रवाज बड़ा भयानक था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया था कि जो अमन कायम रखेंगे उनके साथ पुरअमन सलूक किया जाएगा। इसके बावजूद कुरैश डरे सहमे हुए थे। अहले कुरैश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने रुक कर पूछा, खुद बताओ तुम्हारे साथ क्या सुलूक हो? लोगों की आवाजें बुलंद हुई। वो खैर और बख्शिश के तलबगार थे। अपने घरों को जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमने तुम्हें बख्श दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुकद्दसा की अजीम घड़ी तो वो थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में रखे हुए बुतों की तरफ तवज्जो दी। बुतों की तादाद 360 थी। उनमें एक बुत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी था। उस बुत के हाथों में तीर थे। उन तीरों से
बुत खाने के पेशवा फाल निकाला करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक मोटी और मजबूत लाठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लाठी से बुत तोड़ने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जद्दो अमजद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत तोड़ते जाते और बुलंद आवाज से कहते जाते, हक आया, बातिल चला गया। बेशक बातिल को चले जाना था। मूर्ख लिखते हैं कि ऐसे लगता था जैसे ये सदाएं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाठी की हर ज़र्ब से काबा की दीवारों से उठ रही हों। काबा से बुतों के टुकड़े उठाकर बाहर फेंक दिए गए और काबा आलम इस्लाम की इबादतगाह बन गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के इंतजामी अमूर की तरफ तवज्जो दी। कुरैश और दीगर कबाइल के लोग कबूल इस्लाम के लिए आते रहे। बुत सिर्फ काबा में ही नहीं थे, मक्का के गिरदोनौ की बस्तियों में मंदिर थे, वहाँ भी बुत रखे थे। सबसे अहम बुत अज़ा का था, जो चंद मील दूर नखला के मंदिर में रखा गया था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ा का बुत तोड़ने का काम खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के सुपुर्द किया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने साथ 30 सवार लिए और इस मुहिम पर रवाना हो गए। दूसरे मंदिरों के बुत तोड़ने के लिए मुख्तलिफ जैश रवाना किए गए। अज़ा का बुत अकेला नहीं था, चूंकि ये देवी थी इसलिए उसके साथ छोटी देवियों के बुत भी थे। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां पहुंचे तो मंदिर का पुरोहित उनके सामने आ गया। उसने इल्तिजा की कि उनके बुत ना तोड़े जाएं, मुझे गज़ा का बुत दिखाओ। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने नयाम से तलवार निकालकर पुरोहित से पूछा। पुरोहित मौत के खौफ से मंदिर के एक बगली दरवाजे में दाखिल हो गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो उसके पीछे गए। एक कमरे से गुजरकर अगले कमरे में गए तो वहाँ एक देवी का बड़ा ही खूबसूरत बुत चपर रखा था। पुरोहित ने बुत की तरफ इशारा किया और बुत के आगे फर्श पर लेट गया। मंदिर की दासियां भी आ गईं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार से उस हसीन देवी का बुत तोड़ डाला और अपने सवारों से कहा कि बुत के टुकड़े बाहर बिखेर दें। पुरोहित धाड़े मार मार कर रो रहा था और दासियां बेन कर रही थीं। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देवियों के बुत भी तोड़ डाले और गरज कर पुरोहित से कहा, क्या अब भी तुम इसे देवी मानते हो जो अपने आप को एक इंसान से नहीं बचा सकी? पुरोहित धाड़े मारता रहा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो फातिहाना अंदाज से अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने सवारों को वापसी का हुक्म दिया। जब खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने 30 सवारों के साथ मंदिर से दूर चले गए तो पुरोहित ने जो धाड़े मार रहा था बड़ी जोर से कहका लगाया। बेचारा पुजार ने जो बेन कर रही थी वो भी हंसने लगी। गजा की तौहीन कोई नहीं कर सकता। पुरोहित ने कहा, खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो जो खुद गजा का पुजारी हुआ करता था बहुत खुश हो के गया है कि उसने गजा का बुत तोड़ डाला है। गजा जिंदा है, जिंदा रहेगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी, मैं गजा का बुत तोड़ आया हूँ, कहाँ था ये बुत? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने वो मंदिर और उसका वो कमरा बताया जहाँ उन्होंने वो बुत देखा और तोड़ा था। तुमने गजा का बुत नहीं तोड़ा। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वापस जाओ और असली बुत तोड़ कर आओ। मूर्ख लिखते हैं कि गजा के 2 बुत थे, एक असली जिसकी पूजा होती थी, दूसरा नकली था। ये गालिबन मुसलमानों को धोखा देने के लिए बनाया गया था। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो का खून घोलने लगा। उन्होंने अपने सवारों को साथ लिया और नखला को रवाना हो गए। मंदिर के पुरोहित ने दूर से घोड़सवारों को आते देखा तो उसने मंदिर के मुहाफिजों को बुलाया, वो फिर आ रहे हैं। पुरोहित ने कहा, उन्हें किसी ने बता दिया होगा कि असली बुत अभी मंदिर में मौजूद है। क्या तुम गजा की इज्जत की हिफाजत करोगे? अगर करोगे तो गजा देवी तुम्हें माला माल कर देगी। कुछ सोचकर बात कर मुकद्दस पेशवा, एक मुहाफिज ने कहा, क्या हम 2-3 आदमी इतने ज्यादा घोड़सवारों का मुकाबला कर सकते हैं? अगर गजा देवी है तो ये अपने आप को जरूर बचा लेगी। एक और मुहाफिज ने कहा, उसके लहजे में तंज थी। कहने लगा, देवी देवता इंसानों की हिफाजत किया करते हैं, इंसान देवताओं की हिफाजत नहीं किया करते। फिर गजा अपनी हिफाजत खुद करेगी। पुरोहित ने कहा,
खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो के घोड़े करीब आ गए थे। मुहाफिज मंदिर की पुजारनों को साथ लेकर भाग गए। पुरोहित को यकीन था कि उसकी देवी अपने आप को मुसलमानों से बचा लेगी। उसने एक तलवार ली और उसे गजा के गले में लटका दिया। पुरोहित मंदिर के पिछले दरवाजे से निकला और भाग गया। खालिद रजी अल्लाह ताला अन्हो मंदिर में आन पहुंचे और तमाम कमरों में गजा का बूट ढूंढने लगे। उन्हें एक बड़ा ही खुशनुमा कमरा नजर आया। उसके दरवाजे में खड़े होकर देखा